Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Mateen. My dear and near students, we are going to study a very important topic, which is the Gauss's law. And remember, this is an examination question. पेपर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, MDCAT वगैरह MCQs के लिए this is also very important. याद रखिए, Gauss's law is a tool. It is a very interesting tool. It is a technique by which we can calculate the electric flux passing through any closed surface. So if you see first, look at the statement, Gauss's law of electrostatics. Gauss's law of electrostatics. देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था Coulomb's law of electrostatics. Coulomb law के कुछ particular basic conditions थे कि this is applicable to point charges, static charges, and the distance is taken between the charges, not between their centers, because the charges are point charges, they are dimensionless. तो हम इनके सेंटर से डिस्टेंस नहीं लेते हैं, बल्कि बिटवीन देम डिस्टेंस लेते हैं. इसी तरह Gauss's law के लिए भी एक बेसिक कंडीशन है, वो मैं आपको बता रहा हूँ. आप पहले देखें, दिस लॉ स्टेट्स that the electric flux passing through any closed surface. याद रखिए, ये जो any लफ्ज़ है, ये इस लॉ को क्या करता है, सिग्निफाई, इस लॉ की इम्पोर्टेंस को बढ़ाता है. दिस लॉ स्टेट्स that the electric flux passing through any closed surface, any closed का मतलब है independent of the shape of the closed surface, independent of the geometry of the closed surface. Gauss's law is a very important tool. लेकिन याद रखिए, this is applicable to any closed surface. तो any लफ्ज़ का मतलब है independent of the shape, geometry, volume, area, distance, and so on so. लेकिन remember, this is applicable to a closed surface. और हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि क्लोज सरफेस का मतलब है ऐसा सरफेस जिसके अंदर जितना भी चार्ज हो, अगर अंदर का चार्ज बाहर नहीं जाता और बाहर से जो चार्ज है वो अंदर नहीं आता, तो इसे हम कहते हैं क्लोज्ड सरफेस. और ये क्लोज सरफेस हमेशा हम इमेजिन करते हैं. इसी वजह से दिस क्लोज सरफेस इज ऑलवेज एन इमेजिनरी सरफेस, which is also called the Gaussian surface. Please remember, जो Gauss's law है, this is applicable to a closed surface. Okay? Gauss's law is applicable to a closed surface. यानी whenever you have to apply the Gauss's law to a particular charge distribution, okay, this is a very particular technique, this is a tool, this is a trick to which you can apply to any type of charge distribution. Okay, लेकिन you will have to consider an imaginary closed surface in the form of a cylinder, in the form of a box, in the form of any closed surface you can consider, and you can apply the Gauss's law. तो please remember, Gauss's law एक broad concept है. This is a broad concept as compared to the Coulomb's law, क्योंकि Coulomb law सिर्फ point charges को applicable है. ये पॉइंट चार्जेस को भी अप्लीकेबल है, सिंगल चार्ज पार्टिकल को भी अप्लीकेबल है, और एनी टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को भी अप्लीकेबल है. लेकिन शर्त ये है कि दिस इज अप्लीकेबल टू अ क्लोज सरफेस. दिस इज द बेसिक कंडीशन which is to be obeyed, कि the Gauss's law is only applicable to a closed surface. So this law states that the electric flux passing through any closed surface is equal to 1 over epsilon naught. 1 over epsilon naught times का मतलब है कि 1 over epsilon naught multiplied by the charge enclosed. 1 over epsilon naught times the total charge enclosed. गॉस ने ये स्टेटमेंट इस तरह क्यों स्टेट की? तो देखें, सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिराइव द गॉस's law फॉर अ सिंगल चार्ज पार्टिकल. तो हमारे पास जो मैथमेटिकल शेप आ जाती है, मैथमेटिकल फॉर्म आ जाती है, उस मैथमेटिकल फॉर्म से वी कैन स्टेट दिस स्टेटमेंट. ओके, गॉस ने क्यों कहा? जस्ट फ्रॉम डेरिवेशन ही डिराइव्ड, बिकॉज ही वाज आल्सो अ वेरी गुड मैथमेटिशियन.
तो प्लीज़ रिमेंबर ही डिराइव्ड द लॉ मैथमेटिकली, और फिर उस मैथमेटिकल फॉर्म को उसने वर्डिंग में स्टेट की एंड ही गॉट अ स्टेटमेंट। तो प्लीज़ रिमेंबर द गॉसेस लॉ इज अप्लीकेबल टू एनी क्लोज सरफेस इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप वगैरह वगैरह। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस या अ क्लोज सरफेस। तो हमने क्या किया था, वी कंसिडर्ड अ सिंगल चार्ज पार्टिकल, और फिर इस सिंगल चार्ज पार्टिकल को हमने एक इमेजिनरी स्फीयर में इनक्लोज किया एंड वी कैलकुलेटेड द फ्लक्स। तो शुरू में जो इसका जो स्टार्टिंग है वो बिल्कुल उसी तरह है। उसी लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये जो कंसेप्ट है दिस विल बी अप्लीकेबल टू द गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ में इस कंसेप्ट को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात आप याद रखें कि जो गॉसेस लॉ है, गॉसेस लॉ से वी कैन डिराइव द कूलम्स लॉ। गॉसेस लॉ से वी कैन डिराइव द कूलम लॉ। इसका मतलब है कि गॉसेस लॉ ब्रॉड कंसेप्ट है, दिस इज अ वास्ट कंसेप्ट, अ ब्रॉड कंसेप्ट, और जो कूलम लॉ है वो गॉसेस लॉ का एक लिमिटिंग केस है। कूलम लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस को एप्लीकेबल है, स्टैटिक पॉइंट चार्जेस को एप्लीकेबल है। ये स्टैटिक पॉइंट चार्जेस को एप्लीकेबल है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को भी एप्लीकेबल है। लेकिन रिमेंबर, उसे भी हम कहते हैं कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसे भी हम कहते हैं गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक के बेसिक लॉज हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि वो एक लिमिटिंग केस है एंड दिस इज अ ब्रॉड कंसेप्ट। एंड रिमेंबर, फ्रॉम द गॉसेस लॉ वी कैन डिराइव द कूलम्स लॉ, ओके। तो अब अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि कूलम लॉ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस, अगर लिखा है गॉसेस लॉ, एम्पियर लॉ, फैराडे लॉ, फ्लां लॉ, तो याद रखिए वी कैन डिराइव द कूलम्स लॉ फ्रॉम द गॉसेस लॉ। तो लेट अस फर्स्ट ट्राई for a single charge particle and then we see what happens. अच्छा, look at, देखिए this is a very important concept, this is a very important technique। हमने पढ़ा था last time कि what is electric flux by definition, this is E dot A। E dot A कैलकुलेट करना इतना आसान काम नहीं है, because first you will have to calculate E। E के लिए चार्ज चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, देन यू विल कैलकुलेट एरिया, फिर डॉट प्रोडक्ट, you will have to also include the angle. So this is a lengthy process, a laborious job. But look at the concept of the Gauss's law. गॉस कहते हैं कि अगर आपको सिर्फ चार्ज का पता है, forget about, मजे करो। आपको सिर्फ चार्ज का पता है तो बस एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर, you will get the electric flux passing through any closed surface। तब तक कि this is an equation in hand, this is a very short equation। अगर आपको सिर्फ चार्ज का पता है तो बस you can calculate the electric flux, ठीक है। So this is a very strong technique, a very strong tool to calculate the electric flux passing through any closed surface। While this is by definition, यहाँ calculation करना पड़ेगा, lengthy calculation and so on and so, okay। तो let us first try the Gauss's law for a single charge particle। और ये जो कंसेप्ट है फॉर अ सिंगल चार्ज पार्टिकल, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, वो लेक्चर नंबर 9 में पढ़ा था, बल्कि 8 में पढ़ा था। वो कंसेप्ट हम इधर अप्लाई करते हैं और आखिर में इस गॉसेस लॉ को फिर हम जनरलाइज करेंगे फॉर एनी नंबर ऑफ चार्जेस, नॉट फॉर अ सिंगल पार्टिकल। You can generalize this law for any number of particles, for any type of charge distribution, because this is a broad law। So look at, देखिए हम ऐसा करते हैं कि सिंगल चार्ज पार्टिकल से स्टार्ट लेते हैं। इफ दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, ये एक सिंगल चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज के फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड, तब देखिए आउटवर्ड इस तरह भी पॉसिबल है, इस तरह भी पॉसिबल है, इस तरह भी पॉसिबल है, लाइक दिस है, इट इज पॉसिबल लाइक दिस। अब हमें पता है गॉसेस लॉ का बेसिक कंडीशन क्या है कि इट इज एप्लीकेबल टू अ क्लोज्ड सरफेस।
if it is applicable to a closed surface. So we are going to imagine an imaginary closed surface in the form of a sphere. I am considering I am enclosed in this charge particle in the form of a closed surface. ये आपको सर्कल नज़र आ रहे हैं, लेकिन याद रखिए दिस इज़ अ स्फेयर, क्योंकि स्फेयर को हम 2D में इस प्लेन में आसानी से नहीं बना सकते। याद रखिए दिस इज़ अ स्फेयर, और इस स्फेयर को हम कहते हैं गॉसियन स्फेयर। दिस इज कॉल्ड गॉसियन स्फेयर, या दिस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का मतलब है एन इमेजिनरी सरफेस टू विच द गॉसेस लॉ इज अप्लीकेबल। कभी कभार प्रैक्टिकल में पूछते हैं वाइवा में कि व्हाट इज मेंट बाय गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस का मतलब है एन इमेजिनरी सरफेस which encloses the charge and to which the Gauss's law is applicable is called a Gaussian surface. Okay? अब आप देखिए मेथड क्या था। मेथड ये था कि इस पूरे स्फीयर को आप स्मॉल स्मॉल पेचेस में डिवाइड करें, हर पेज से फ्लक्स कैलकुलेट करें, और बाय डेफिनेशन, और फिर इन तमाम फ्लक्सेस को ऐड करें, यू विल गेट द टोटल फ्लक्स। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। ये हम दोबारा पढ़ रहे हैं, एक दफ़ा पढ़ा है। लुक एट ए, हमारे पास अगर ये है पेज नंबर 1, आपको पता है पॉजिटिव चार्ज के फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड है, इज इट? और लेट अस सपोज इस पेज का एरिया है डेल्टा A1। डेल्टा का मतलब है स्मॉल एरिया ऑफ पेज नंबर 1, क्योंकि इस पेज का जो नॉर्मल है वो बिल्कुल ई को पैरेलल है, तो ई और इस नॉर्मल के दरमियान एंगल इज 0। दिस इज अनदर पेज। अब देखिए ये क्लोज होने चाहिए, लेकिन मैं इसी वजह से ले रहा हूँ इसी तरह कि आपको नज़र आ जाए। दिस इज फॉर एग्जांपल डेल्टा A2 और ये है ई, और देखिए दिस इज अनदर पेज विच इज डेल्टा A3 up to delta AN। तो देखें अप्लाइंग फर्स्ट द डेफिनेशन। तो डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स क्या है? E डॉट A, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the first page is E dot delta A1. The electric flux through the second page is E dot delta A2. The electric flux passing through the third patch is delta A3, or generalizing this, so the electric flux passing through the nth page is equal to E dot डेल्टा AN। सही है? दिस इज द टोटल फ्लक्स। ये वो टोटल फ्लक्स है, इज इट? यानी अगर आप इन तमाम को ऐड करें तो दिस विल गिव यू द टोटल फ्लक्स लीविंग फ्रॉम दिस गॉसियन स्फीयर। इसी वजह से अगर आप टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करें तो आई विल राइट इट हियर। देखिए द टोटल फ्लक्स will be equal to flux number 1, flux number 2, ठीक है, flux number 3, और up to, this is for example up to the last which is flux number n। ठीक है, this is let equation number 2। आप ऐसा करें, put equations 1, यानी 1 में जितने भी इक्वेशंस हैं आप इसे 2 में पुट करें, इन इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा A1 प्लस ई डॉट डेल्टा A2 प्लस ई डॉट डेल्टा A3 प्लस ई डॉट
डेल्टा ए एन, सही है। अब मैथमेटिक्स कहती है कि इसे इस तरह लिखो, लोकेट देखिए इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं कि टोटल फ्लक्स इज सिग्मा फ्रॉम I इक्वल टू 1 अप टू n एंड दिस इज E डॉट डेल्टा ए आई, और I is a running number which runs from 1 up to n। देखिए I is a running number which runs from 1 up to n। लेकिन रिमेंबर लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था कि मैथमेटिकली दिस इक्वेशन कैन बी रिटन लाइक दिस, सिग्मा ओवर द होल सरफेस एंड दिस इज E डॉट डेल्टा ए। अगर आप ऐसा करें कि इसे डेल्टा ए ले ले, ये भी डेल्टा ए मैग्नीट्यूड्स में अगर ये तमाम पेजेस बराबर है डेल्टा ए डेल्टा ए डेल्टा ए डेल्टा ए, तो फर्स्ट डेल्टा ए से फ्लक्स कैलकुलेट करो, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से बाय डेफिनेशन, ठीक है, और फिर फोर्थ से, और फिर nth से, और फिर इन तमाम को ऐड करें तो वी कैन से लाइक दिस। सो दिस इज द टोटल फ्लक्स लीवन बाय द गॉसियन sphere due to this point charge, due to this single charge particle, ठीक है। this could be written like this, electric flux is equal to sigma, देखिए E is a vector, delta A is a vector, तो A डॉट B फार्मूला जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, A डॉट B इज इक्वल टू ए बी क्रॉस थीटा, इसे मैं लिख सकता हूँ E डेल्टा A इंटू क्रॉस थीटा। याद रखिए यहाँ पर जो थीटा है वो जीरो है। क्यों जीरो है? डेल्टा A1 और E के दरमियान एंगल जीरो, डेल्टा A2 और E के दरमियान एंगल जीरो, डेल्टा A3 और E के दरमियान एंगल जीरो। तो अगर आप हर एक में एंगल जीरो 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 पुट करें और कैलकुलेशन करें और फिर तमाम को ऐड करें, यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट, इज इट? अगर आखिर में एंगल जीरो पुट करें, डजंट मैटर। तो दैट इज वेरी लेंथी प्रोसेस। तो हम इस तरह करते हैं, देखें अगर आप इस तरह लेके E डॉट डेल्टा A1, तो दिस इज E डेल्टा A1 क्रॉस थीटा विच इज जीरो, तो E डेल्टा A1 आ जाएगा, फिर E डेल्टा A2, फिर E डेल्टा A3, फिर तमाम को ऐड करें, डजंट मैटर। और आखिर में अगर आप थीटा की जगह जीरो पुट करें, इट डजंट मैटर। तो देखें ये मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज सिग्मा एंड दिस इज E डेल्टा A एंड यू नो कॉस जो थीटा है दिस इज जीरो। व्हाट इज कॉस जीरो? कॉस जीरो इज 1। अगर कॉस जीरो 1 है तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, शाबाश। देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू द सिंगल चार्ज पार्टिकल passing through the Gaussian sphere is written as sigma s and this is E डेल्टा A। आप लोग देखिए इस E का क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड ऑफ E। तो देखिए मैग्नीट्यूड इस स्फीयर के ऊपर, ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि इट रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि इस चार्ज पार्टिकल का और इस पॉइंट का डिस्टेंस r है। This is also r which is the radius of the sphere of the Gaussian sphere. This is r। तो मैग्नीट्यूड ऑफ E अगर आप इधर देखें या इस सरफेस के ऊपर इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें, इधर, तो इट विल रिमेन कांस्टेंट। इसी वजह से इस E को आप इस सिग्मा से बाहर ले आएं। इसे आप बाहर करें, इस E को बाहर ले जाएं और आई विल राइट इट लाइक दिस, सिग्मा delta A over the whole surface. Now what is sigma delta A over the whole surface? sigma delta A का मतलब है कि डेल्टा A प्लस डेल्टा A प्लस डेल्टा A प्लस डेल्टा A अप टू द लास्ट, इन तमाम डेल्टा A's को अगर आप ऐड करें तो याद रखें you will get the surface area of this Gaussian sphere।
फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल है, इमेजिन करो फुटबॉल छोटे छोटे पैचेस से बना हुआ होता है। तो अगर आप ऐसा करें कि हर पेज का एरिया कैलकुलेट करें, फिर दूसरे का तीसरे का सबको ऐड करें, तो यू विल गेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फुटबॉल। इज इट? तो आप देखिए व्हाट इज दिस व्हाट इज बेसिकली दिस सिग्मा डेल्टा ए, दिस इज द surface area of the Gaussian sphere। ये Gaussian sphere का surface area है, सही। और आपको पता है सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो लोकेट, एनी क्वेश्चन? देखो ये जो सिग्मा एस डेल्टा ए है, this is 4 pi r squared, equation number 6. And what is this E? E is the electric field intensity on this surface due to this single charge particle. If you remember last time हमने पढ़ा था electric field intensity due to a point charge by applying the Coulomb law. By applying the Coulomb law हमने पढ़ा था कि electric field intensity due to a point charges, यहाँ पर ये हम अप्लाई कर सकते हैं। It is like this. This is equation number 7. आप ऐसा करें, put equation 6 and 7 in 5. Put equation number 6 and 7 in equation number 5. Is it? So let us see what happens. The electric flux due to this single charge particle which is leaving from the Gaussian surface or sphere is 1 over 4 pi epsilon naught. This is q by r squared and this is 4 pi r squared. ठीक है? देखिए कूलम लॉ में जो 4 पाई फैक्टर आया है, ये असल में अगर आप देखें इस गॉसियन स्फीयर को छोटा करे डजंट मैटर, आप इसे बड़ा करे इट डजंट मैटर। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों। इसी वजह से ये 4 पाई और ये 4 पाई आर स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इट इज q डिवाइडेड बाय epsilon naught. This is the electric flux due to a point charge according to the Gauss's law. अब देखिए he did calculation, he used mathematics और mathematically he proved, look at, आप इधर देखें, this is the electric flux passing through that Gaussian sphere due to a point charge which depends wholly solely on the charge enclosed inside the sphere. Gauss कहते हैं forget about E, forget about area, R, distance, volume, area, density, shape, forget about. आप लोग इस इक्वेशन में देखिए, this equation is independent of the shape, geometry, distance, volume, एरिया, ठीक है, वगैरह वगैरह। आपको इस इक्वेशन में कोई ज्योमेट्री नजर आ रही है? आर नजर आ रहे? कोई एरिया नजर आ रहे? वॉल्यूम नजर आ रहे? आप देखिए इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग, इट होली सोली डिपेंड्स अपॉन द चार्ज एनक्लोज्ड। तो गॉस कहते हैं कि फॉरगेट अबाउट दिस लेंथी प्रोसेस, कि आप कहते हैं स्मॉल एरिया में डिवाइड करें फलां और फिर फ्लक्स कैलकुलेट करें और फिर ऐड करें एंड देन यू विल गेट द टोटल फ्लक्स। फॉरगेट अबाउट दिस लेंथी प्रोसेस, दिस इज जस्ट अ लेबोरियस जॉब। आप ऐसा करें कि अगर आपको सिर्फ चार्ज का पता है तो यू कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग। इज इट? अच्छा लुक इट, देखें अब जरा इधर देखें,
look at the concept. शाबाश, देखिए इधर, ये स्फीयर हमने क्या कंसिडर किया है? इमेजिनरी. दिस इज अ गॉसियन स्फीयर, अ गॉसियन सरफेस, क्वाइट इमेजिनरी है, बिल्कुल इमेजिनरी है. लेकिन आप इस इमेजिनेशन का पावर देखें. गॉस कहते हैं कि अगर आप सिर्फ चार्ज का पता है, यू कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस. नाउ एनी लफ्ज को देखें कि एनी लफ्ज में कितनी पावर है, कितनी ताकत है. लुक एट ए, इस क्लोज सरफेस से अगर आप गिन ले, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. देखें, इस गॉसियन स्फीयर से 13 लाइन्स आर लीविंग. इज इट? अगर आप इस गॉसियन सरफेस को, स्फीयर को छोटा ले लें, हाउ मेनी लाइन्स आर लीविंग? 13. आप इसे बड़ा ले लें, हाउ मेनी लाइन्स आर लीविंग? 13. डजंट मैटर. अगर आप इसे बिल्कुल इर्रेगुलर शेप वाला ले लें, हाउ मेनी लाइन्स आर लीविंग? 13. इट डजंट मैटर. आपकी मर्जी, जिस तरह शेप ले लो, आप जिस तरह भी शेप ले ले, हाउ मेनी लाइन्स आर लीविंग? 13. इसी वजह से गॉस कहते हैं कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड. उसे कहाँ से पता चला? इस कैलकुलेशन से पता चले. देखिए, दिस इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन. इस मैथमेटिकल इक्वेशन को आप वर्ड इन में स्टेट करें, यू आर गेटिंग द गॉसेस लॉ. फॉर एग्जाम्पल, दिस लॉ स्टेट्स that the electric flux passing through any closed surface is equal to 1/ε0 times the charge enclosed. Is it? अब हम ऐसा करते हैं, ये तो हमने सिंगल चार्ज पार्टिकल के लिए पढ़ा ना, और हमें ये भी पता चला कि न वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, न शेप, न एरिया, न डेंसिटी, न आर, न ज्योमेट्री, किसी चीज़ पर फ्लक्स डिपेंड नहीं करता, सिर्फ चार्ज इनक्लोज्ड पर डिपेंड करता है. तो अब हम ऐसा करते हैं, इसे जनरलाइज करते हैं फॉर any shape and for any number of charges, मतलब for any charge distribution. So let us generalize and we will get the original equation of the Gauss's law. Okay, तो generalize करते हैं. Let us generalize this. देखिए, जनरलाइज करते हैं. वी कैन से जनरलाइजिंग दिस लॉ वी गेट अब आपकी मर्जी है, जिस तरह का भी सरफेस ले ले, इट डजंट मैटर. एंड दिस इज फॉर एग्जांपल चार्ज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3. आपकी मर्जी है, जितना आप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम. दिस इज द लास्ट चार्ज. तो देखिए, वी कैन से कि the electric flux due to charge number 1 is q1/ε0. The electric flux due to charge number 2 is q2/ε0. The electric flux due to charge number 3 is q3/ε0. और generalize करें, so the electric flux due to the nth charge is qn divided by ε0. What is this equation number? 8. This is 8 I think. तो देखें, अब टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करें, तो टोटल फ्लक्स बराबर आ जाएगा फ्लक्स नंबर 1, फ्लक्स नंबर 2, फ्लक्स नंबर 3 एंड द लास्ट फ्लक्स. दिस इज नंबर 9. आप ऐसा करें, पुट इक्वेशंस, यानी ये जितने भी हैं 8 में 9 में पुट करें, सो वी गेट लाइक दिस. टोटल फ्लक्स आ जाएगा q1/ε0, q2/ε0, q3/ε0 एंड दिस इज अप टू qn/ε0. इन तमाम में कॉमन क्या है? 1/ε0 कॉमन है. तो वी आर गेटिंग हियर q1 प्लस q2 प्लस q3 up to plus qn. What is this?
टोटल चार्ज, ए दिस इज टोटल चार्ज, ये हमारे पास टोटल चार्ज है, ठीक है। टोटल चार्ज को हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप देखें, आप इसे स्टेट करें तो डॉर्जेस लॉ की स्टेटमेंट आ जाएगी। दिस लॉ स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 over epsilon naught times the total charge enclosed. So the Gauss's law is, this is Q divided by epsilon naught. Is it? So this is the Gauss's law. This is number 10. Okay? देखिए, Gauss's law is a very important tool. Gauss कहते हैं कि forget about the lengthy process, forget about this lengthy calculation. अगर आपको सिर्फ चार्ज का पता है, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करें, यू आर गेटिंग द फ्लक्स लीवन बाय एनी क्लोज सरफेस। तो प्लीज रिमेंबर दैट गॉस's law is applicable to any closed surface. It is independent of the geometry. Whatever the geometry of the closed surface is, the shape is, you can apply the Gauss's law very simply. Okay? Thank you very much.